السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار، پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ راجیہ سبھا کے ایم پی و بی جے پی او بی سی قومی صدر ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 18 تاریخ سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں عوامی موضوعات پر مباحث ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے آج تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا، جس میں حلقے گدوال سے بھارت راشٹرا سمیتی کے ایم ایل اے بنڈلا کرشنا موہن ریڈی کو نااہل قرار دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے KCR کا نظریہ ہے کہ ریاست میں نئے سرکاری دفاتر قائم کیے جانے چاہیے تاکہ بہتر حکمرانی کی جا سکے۔ تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے کیے گئے بند کے اعلان پر جن سینا اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی پارٹیوں نے بھی سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ آندھرا پردیش میں بند جزوی اور پرامن رہا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ یوم شہیدان جنگلات کے موقع پر آج وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے جنگلات کے تحفظ کے مشن کے لیے خود کو وقف کر دینے والے تمام شہیدوں کو خراج پیش کیا ہے۔ KCR نے اپنے بیان میں جنگلات کے بغیر سماج کے تصور کو خارج کرنے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سرسبز و شادابی بہت ضروری ہے۔ ان کے مطابق تلنگانہ حکومت نے ریاست کی تشکیل کے فوری بعد ٹھوس اقدامات شروع کیے ہیں۔ ریاستی حکومت کے پروگرام ہریتا ہرم سے جنگلات کو باقی رکھنے کے لیے زبردست نتائج حاصل ہوئے اور سرسبز و شادابی کو یقینی بنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے آج تلنگانہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے، جس میں حلقے گدوال سے بھارت راشٹرا سمیتی کے ایم ایل اے بنڈلا کرشنا موہن ریڈی کے نااہل قرار دیا گیا۔ جسٹس سوریہ کانت اور دیپانکر دتا پر مشتمل ایک بینچ نے BJP لیڈر DK ارونا کو نوٹس جاری کی، جنہیں ہائی کورٹ نے منتخب قرار دیا تھا۔ سپریم کورٹ نے DK ارونا سے کہا ہے کہ وہ 4 ہفتوں کے اندر اپنا رد عمل ظاہر کریں۔ ہائی کورٹ نے 24 اگست کو ریڈی کے انتخاب کو غلط ٹھہراتے ہوئے ان پر جھوٹا حلف نامہ داخل کرنے کے لیے 2.5 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا تھا۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ DK ارونا دسمبر 2018 سے MLA منتخب رہیں گی۔ راجیہ سبھا کے MP و BJP OBC صدر ڈاکٹر لکشمن نے کہا ہے کہ اس ماہ کی 18 تاریخ سے پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس منعقد کیا جائے گا، جس میں عوامی مفادات پر مبنی کئی مسائل پر مباحث کیے جائیں گے۔ نئی دہلی میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ خصوصی اجلاس تاریخی رہے گا، کیونکہ اس میں توجہ عوامی معاملات پر رہے گی۔ انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ ایک قوم ایک انتخاب نہیں ہوگا، تاہم اسمبلی انتخابات دسمبر میں منعقد ہوں گے اور لوک سبھا انتخابات کا انعقاد آئندہ برس مارچ یا اپریل میں کیا جائے گا۔ لکشمن نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا نظریہ ہے کہ ایک قوم ایک انتخاب کو نافذ کیا جانا چاہیے تاکہ عوامی رقم کا تحفظ ہو سکے۔ لکشمن نے اس موقع پر سابق چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کی مذمت کی اور کہا کہ اس سلسلے میں پولیس نے مناسب طریقہ کار نہیں اپنایا۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے MBBS BDS نشستوں کے لیے مقامی امیدواروں کو 100% تحفظات دیے جانے کے فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے داخل کردہ درخواستوں کو آج مسترد کر دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے میں مختلف درخواستوں کی سماعت کی۔ چیف جسٹس آلوک آرادھے کی زیر قیادت ایک ڈویژن بینچ نے تلنگانہ حکومت کی جانب سے 23 جولائی کو جاری کردہ GO نمبر 72 کو غیر قانونی قرار دیا۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے ابراہیم پٹنم کے MLA منچی ریڈی کشن ریڈی کے ہمراہ عادل رنگا ریڈی کے منڈل ابراہیم پٹنم میں نومنظور شدہ ایگزیکٹو پنچایت راج آفس اور ڈپٹی ایگزیکٹو پنچایت راج کوالٹی کنٹرول کے دفتر کا افتتاح کیا۔ ان دفاتر کو قائم کرنے کا مقصد عوام کو سرکاری خدمات سے استفادہ پہنچانے کے لیے مدد فراہم کرنا ہے۔ سبیتا اندا ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کا نظریہ ہے کہ ریاست میں نئے دفاتر قائم کیے جائیں تاکہ حکمرانی کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے۔ ریاست بھر میں جملہ 87 نئے دفاتر قائم کیے گئے، جن میں چیف انجینئر CE سرکل آفس، ڈویژن آفس اور سب ڈویژن دفاتر شامل ہیں۔ وزیر نے مزید کہا کہ CE آفس حیدرآباد میں قائم کیا گیا، جبکہ سرکل دفاتر کو کئی اضلاع میں قائم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جلد ہی کریم نگر، میڈچل، کھمم اور نلگنڈے میں بھی نئے دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ تلگو دیشم پارٹی کی جانب سے کیے گئے بند کے اعلان پر جن سینا اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والی پارٹیوں نے بھی سابق وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا۔ جیسا کہ آندھرا پردیش میں آج بند منایا گیا۔ BJP نے کہا اس بند کی حمایت کرنے کا اعلان نہیں کیا ہے، جبکہ تمام تجارتی ادارے بند رہے اور بعض تعلیمی اداروں نے تعطیل کا اعلان کیا تھا۔ ابتدا میں APS RTC کی بسیں بھی کئی مقامات پر نہیں چلائی گئی، تاہم بعد ازاں RTC بس خدمات کو
बहाल किया गया। बंद जुज़वी और पुरअमन रहा और रियासत भर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, पुलिस ने ये बात बताई। इसी दौरान पुलिस ने बंद के पेश नज़र तेलुगु देशम के रियासत भर से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन तमाम लीडर्स को घर पर नज़रबंद कर दिया था या हिरासत में ले लिया था। इस दौरान तेलुगु देशम लीडर के अरकान सड़कों पर पार्टी परचम उठाए और नारे लगाते हुए देखे गए। वो बंद बनाने के लिए जोर दे रहे थे। दूसरी जानिब चंद्रबाबू नायडू के वकीलों ने रियासती हाईकोर्ट में अपने मौकिल की ज़मानत के लिए दरख्वास्त दाखिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने समाजी मुसल्ले आचार्य विनोबा भावे को आज उनके यौम पैदाश पर खराज पेश किया है। मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विनोबा भावे ने समाजी इस्लाहात के लिए खुद को वक्फ कर दिया था और कमज़ोर तबक़ात को ऊपर लाने के लिए अनथक काविशें की, जिससे हर कोई मुतासिर है। मोदी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि विनोबा से आने वाली सदियों में इंसानियत को रहनुमाई मिलते रहेगी। मरकज़ी हुकूमत ने कहा है कि खरीफ फसल का स्विंग इलाका 1088 लाख हेक्टर्स को उबूर कर चुका है। मरकज़ी वज़ारत ज़राअत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खरीफ फसलों के तहत इस साल चावल के स्विंग इलाके में गुज़िश्ता साल के मुकाबले इजाफा हुआ है। ये इलाका 392 लाख हेक्टर से बढ़कर 403 लाख हेक्टर्स हो गया है। मुल्क के सरकर्दा साइंस इनाम शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड का 2 साल के वक्फे के बाद आज ऐलान किया गया। इस साल 7 ज़मरों में 12 साइंसदानों को अवार्ड दिए जाएंगे। डॉक्टर कालेश्वी डायरेक्टर जनरल CSIR ने आज साल 2022 के तहत ये अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर साइंस व टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। जितेंद्र ने कहा कि G20 इजलास के ज़रिए हिंदुस्तान को अपनी टेक्नोलॉजी और इक़्तिसादी ताकत को ज़ाहिर करने का मौका मिला है। वज़ीर ने CSIR के प्रोग्राम एक हफ़्ता एक लैब को शुरू करते हुए कहा कि ये वक्त दुनिया को ये बताने का है कि हम अवामी भलाई के लिए साइंस के मैदान में उम्दा काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आज से शुरू हुआ और 16 सितंबर तक जारी रहेगा। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वज़ीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हिंदुस्तान बायोफ्यूल्स अलायंस ग्लोबल GBA के ज़रिए दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। इस इत्तेहाद को G20 इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। GBA हिंदुस्तान की ज़ेर क़यादत एक ऐसा इक़दाम है जिसके ज़रिए हुकूमतों, बैनुल-अक़वामी तंजीमों और सनतों का इत्तेहाद किया जाएगा ताकि बायोफ्यूल को अपनाया जा सके। पुरी के मुताबिक 19 ममालिक और 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमें पहले ही इस इत्तेहाद में शामिल हो चुकी हैं। हरदीप सिंह पुरी ने मज़ीद कहा कि GBA से दुनिया भर में साफ़ और सरसब्ज़ तवानाई के लिए दुनिया को एक तारीख़ी रास्ता मिला है। ज़ायद दही मांगने पर होटल मुलाज़मीन ने किया गाहक का कत्ल। बिरयानी में इजाफी दही पर झगड़ा हैदराबाद के एक होटल के अमले के ज़रिए मुबैना तौर पर एक गाहक को कत्ल करने का बाइस बना। ये चौंका देने वाला वाक़या इतवार की रात देर गए शहर के वस्त में वाक़ पंजागुट्टा के मेरिडियन रेस्टोरेंट में पेश आया। लियाकत, जो आधी रात के करीब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, उन्होंने होटल के मुलाज़मीन से बिरयानी के साथ इजाफे दही का मुतालबा किया, जिस पर लियाकत की मुलाज़मीन के साथ गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। इसी दौरान होटल के अमले ने इन पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हो गए। हमले में ज़ख्मी होने के बाद लियाकत शिकायत दर्ज कराने के लिए पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन गए। पुलिस वालों से बात करते हुए वो गिर पड़े। पुलिस ने इसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC मिर्ज़ा रहमत बेग कादरी वहाँ पहुँचे और मुतासिरा ख़ानदान के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। होटल में आज 11 बजे जो है गड़बड़ हुई। गड़बड़ का मतलब क्या है बोले तो खाना खाने के लिए लोग आ गए, खाना खा रहे थे, दही पूछे, दही नहीं दिए, 1 से 4 बार बोले तो नहीं दिए, तो कुछ रफ लैंग्वेज में बात करे तो कुछ अफरा तफरी हो गई, कुछ बातें होते रहते वो छोटे मोटे। दरवाजे बंद करके जो है उन लोगों पूरे जो ग्राहकों को मार के जो है थोड़े लोग बाहर निकल गए। अब ये लड़ाई झगड़ा कहाँ से हो रहा बोल के वो बच्चे को जो है ना मार के नीचे डाल के मैनेजर उल्लगा सब जने मिलके जो है उसको अधमरा कर दिए वहाँ पे। फिर उतने में पुलिस आई, नीचे 2 जने ठहरे, ऊपर 2 जने गए, उन लोगों के सामने हुआ। यहाँ लेके आने के बाद में जो है नीचे आधा घंटे के ऊपर रख दिए। उन्हें बोल रहा उसको खया हो रहे तो भी मेरे को सांस रुक रही बोल के बोले तो भी उन लोग समझ रहे नहीं और सुन रहे नहीं।
ऐसे ही जो है सो क्या रे नखरे कर रहा वो कर रहा बोल के बोले कहते। उन्हें मरने के बाद में जो है गाड़ी की फॉर्च्यूनर की चाबी देके जब डेक्कन अस्पताल को ले गए। अब बोलने का मतलब ये है कि ये इंसाफ इस तरीके से होता क्या, उन्हें क्या देता क्या करता वो नहीं मालूम है। अपने को अपन किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। आराम से उन लोगों को लेके आके यहाँ पे बिठा के रखे। कोसी होटल है साहब वो? मेराडेन होटल यहाँ बाजू में छे। ये क्या टाइम का वाकया है? ये 11 बजे के टाइम का वाकया है, 10:30-11 बजे। तो मेराडेन होटल मोहब्बत के तिकोनी केस में जूनियर आर्टिस्ट का कत्ल, मकतूल के मोबाइल को ऑन करना एक मुलजिम को महंगा पड़ा। मोहब्बत के एक तिकोनी केस में एक यूट्यूबर ने अपने साथियों के साथ हैदराबाद में एक जूनियर फिल्म आर्टिस्ट का कत्ल कर दिया। 18 साल के कार्तिक, जो 13 अगस्त से गुमशुदा बताया गया, साई और उसके 3 दोस्तों ने शहर के नवाह में जंगल के इलाके में चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। हमलावरों ने पत्थरों से इसके सर को भी कुचल दिया। जुबली हिल्स पुलिस ने जहां कार्तिक के भाई की शिकायत पर 16 अगस्त को एक केस दर्ज कर लिया था, तहकीकात का आगाज़ कर दिया। ताहम 2 यौम कबल इस केस में अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई जबकि सुरेश, एक मुलजिम बताया गया है, के पास मुतासिरा का फ़ोन था। इसने अनजाने में सेल फ़ोन को ऑन कर दिया, जिसके साथ ही पुलिस ने सुरेश का पता चला लिया और उसको गिरफ्तार करते हुए इससे पूछताछ की। पुलिस ओल्ड एयरपोर्ट रोड बोयनपल्ली में जुर्म के इर्तिकाब के मुकाम पहुंची और मुतासिरा के ढांचे के बाक़ियात को हासिल कर लिया। हालत नशे में हरासा करने वाले बेटे को मां ने हलाक कर दिया। हालत नशे में हरासा करने वाले बेटे को मां ने हलाक कर दिया। ये वाक़या तेलंगाना के भद्राचलम में पेश आया। मेडिकल कॉलोनी के रहने वाले दुर्गा प्रसाद की बीवी इसकी रोज़ाना की हरासानी से तंग आकर इससे अलहदा रहा करती है। प्रसाद शराब का आदी था। बीवी के छोड़कर चले जाने पर वह मां को शराब पीकर हरासा किया करता था, जिस पर तंग आकर खातून ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया और उसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट जज हादसे में जख्मी, तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की जज तेलंगाना में पेश आए सड़क हादसे में शदीद जख्मी हो गई। इनको बेहतर इलाज के लिए तेलंगाना के वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद मुंतकिल किया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जिले सूर्यापेट में उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से बजरिए कार विजयवाड़ा जाने वाली खातून जज वी सुजाता की कार के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे झाड़ियों में घुस पड़ी। इस दौरान वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने खातून जज को सूर्यापेट के एक अस्पताल में दाखिल करवा दिया। इस हादसे में खातून जज शदीद जख्मी हुई। इस हादसे में कार ड्राइवर भी जख्मी हो गया। इसी दौरान रियासती वजीर जगदीश रेड्डी, जो एक तकरीब में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे, इस हादसे की इत्तला मिलते ही अस्पताल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से जज की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। जब डॉक्टर्स ने इन्हें बताया कि खातून जज को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल करने की ज़रूरत है, तो वज़ीर मौसूफ ने पुलिस को इस खुसूस में चौकस किया। उन्होंने सूर्यापेट से हैदराबाद तक कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को हटाने की हिदायत दी। जस्टिस सुजाता को ले जाने वाली एम्बुलेंस को वज़ीर मौसूफ के काफ़िले के दरमियान रखा गया और शदीद बारिश के बावजूद बगैर किसी परेशानी के 1 घंटा 15 मिनट में हैदराबाद मुंतकिली को यकीनी बनाया गया। जस्टिस सुजाता इस वक्त एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डॉक्टरों ने कहा कि जज को बर वक्त हैदराबाद मुंतकिल करना एक अच्छी पेशरफ्त है। बार एंड पब पर धावा, 30 अफराद गिरफ्तार। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने बार एंड पब पर धावा करके 10 खातून डांसर्स, 16 कस्टमर्स और 4 मुलाजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की बमौजिब एसआर नगर में वाक़ बार एंड पब पर धावा करके गैर कानूनी सरगर्मियों का पर्दाफाश किया गया। पब के 4 मुलाजिमीन के नाम कृष्णा राव पब का मालिक, इवेंट मैनेजर उमर बिन अब्दुल्ला, बी सिद्धार्थ पब कैशियर और के कृष्णा डीजे बॉय शामिल हैं। इनके कब्जे से लैपटॉप और दीगर अशिया जब्त कर ली गई। जुमला 30 अफराद को गिरफ्तार किया गया और इन्हें मजीद कार्रवाई के लिए एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुज़िश्ता जुमे के खुतबे में मस्जिद के इमाम व खतीब मुफ्ती सादतुल्लाह हुसैनी ने अपने इलाके के कब्रस्तान के मसले को उठाया, जिसका असर यह हुआ कि खैरताबाद BRS रुकन असम्बली दानम नागेंद्र ने बेगमपेट के कब्रस्तान के सिलसिले में रियासती वक्फ बोर्ड के और रेवेन्यू के आला अहदेदारों की हिदायत दी कि जॉइंट सर्वे करवाए। इस सिलसिले में हम मुफ्ती सादतुल्लाह हुसैनी को मुबारकबाद देते हैं। उलमा और मसाजिद के खतीब हजरात को भी चाहिए कि इस तरह के समाजी मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाए। नागेंद्र जो साहब है ना, जो यहाँ के MLA साहब हैं, वो अपने आप को
इस वक्त के फिरौन समझ रहे इस इलाके के। मैं उनसे कह देना चाहता हूं तमाम मस्जिद के नुमाइंदों की तरफ से, पूरे खैरताबाद के जिम्मेदारों की तरफ से, अगर आप जो हक हम मांग रहे हैं कब्रिस्तान का, जो हक हम मांग रहे हैं मुसलमानों का, अगर आप हक वो न देंगे तो याद रखना, वही आकिल साहब के जुमले में दोहराना चाहता हूं, हमें अच्छी तरीके से मालूम है कि किसको कुर्सी पे बिठाना है, किसको कुर्सी से उखाड़ के फेंकना है। कान खोल के सुन ले, हमने बिठाया था आपको कि हमारा हक हासिल होगा, हमने बिठाया था आपको कि हमारे मामलात, हमारे मसले आप हल करेंगे, लेकिन आप डाल मटोल से काम ले रहे हैं। आप ये कह रहे औकाफ से मामला आएगा, फला से मामला आएगा, फला तक बात पहुंच गई, फला जगह फाइल चले गई, गेजेट आने के बाद भी हमें हमारा हक नहीं दिया जाता, वहां पे मैयतों को दफन करने की इजाजत नहीं दी जाती। मैयतें कई दफा लेकर गए, पुलिस वाले आ गए। हुकूमत भी क्या हुकूमत है, इन्हें मालूम है कैसी जगह है, और नापाक निगाहें डालकर बैठ के इसी जगह के ऊपर। याद रख ले एमएलए साहब, इनकी बाबत इन मुसल्लियों की और खैरताबाद की कमेटी की और खैरताबाद कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम की तरफ से मैं नुमाइंदगी करते हुए कहता हूं कि अगर न दोगे तो याद रखो आइंदा के लिए आपकी कुर्सी तो क्या जिल्लत और खार आपका मुकद्दर बन के रहेगी। कोशिश करें आप हजरात भी, दुआएं करें कि कितने दफा यहां पर एहतजाज भी किया गया, पुलिस आ गई। अभी आपको मालूम है गुज़िश्ता कल शायद को कुछ ईद थी, जन्माष्टमी, पता नहीं मुझे क्या थी वो। अभी मैं 12:15 बजे निकला हूं अपने घर से, 1:13 पे पहुंचा। इतनी ट्रैफिक, रास्ते में कहीं पूजा वगैरह चल रही, पुलिस का कोई बंदोबस्त। हम एक बैनर लेके ठहर जाए, खैरताबाद के चौरस्ते तक पुलिस ठहरती। లైన్ లో ఉన్నాడు, మీరు ఇమీడియట్ గా మీరు వర్క్ బోర్డ్ కు రాయండి, వర్క్ బోర్డ్ లో డిమార్కేషన్ ఇచ్చేస్తారు మీకు। జాయింట్ సర్वे పెడతాడు ఆయన। बोलो सर मसी भाई बोलो तुम। मैडम आप जॉइंट सर्वे रख दीजिए, मैं हमारे आरडीओ को, एमआरओ को, हमारा वक्फ बोर्ड की पूरी टीम को भेज देता हूँ। हमारे पास आरडीओ एमआरओ दो भी रहता, वक्फ बोर्ड का हमको पूरा विद पेपर विद डॉक्यूमेंटेशन भेज देता हूँ। जॉइंट सर्वे रख दीजिए आप, ఓకే మేడం, डेट दे दीजिए, हम आ जाते हैं पूरे। ఠీకేనా మేడం? మీరు చేసేయండి, ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది, కావాలని దాన్ని పొలిటికలైజ్ చేస్తున్నారు। సో మనం ఇమీడియట్ గా మీరు మండే లెటర్ ఇచ్చేయండి, ఆయన 1-2 days లో సర్వే పెట్టేస్తారు। मंडे ट्यूसडे जब जॉइंट सर्वे रखते बोल दो, लेटर की भी जरूरत है, मैं నేను లెటర్ గివ్ ద ఆఫీషియల్ లెటర్, प्लीज రైట్, ఆఫీషియల్ ఇవ్వండి మేడం లెటర్ మీరు, రైట్ రైట్। థ్యాంక్ యూ మసి, థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం। राम मंदिर के इफ्तिताह के बाद गोधरा जैसा वाक़या पेश आने का उद्धव ठाकरे ने किया दावा। शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए पूरे मुल्क से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जमा होने वाले लोगों की वापसी के सफ़र के दौरान गोधरा जैसा वाक़या पेश आ सकता है। 27 फरवरी 2002 को अयोध्या से साबरमती एक्सप्रेस पर वापस आने वाले कार सेवकों पर हमला किया गया और गुजरात के गोधरा स्टेशन पर इनकी ट्रेन के कोच को आग लगा दी गई, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। इस वाक़े के रियासत भर में बड़े पैमाने पर फसादात हुए थे। ठाकरे ने जलगांव में एक जलसेआम से खिताब करते हुए कहा कि इम्कान है कि हुकूमत राम मंदिर के इफ्तिताह के लिए बसों, ट्रकों और ट्रेनों में बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ कर सकती है। उनके वापसी के सफ़र पर गोधरा की तरह का वाक़या पेश आ सकता है। राम मंदिर का लोकसभा इंतखाबात से कबल जनवरी 2024 में इफ्तिताह का इम्कान है। मिस्टर ठाकरे ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिंह को भी तनकीद का निशाना बनाया। न करूंगा न करने दूंगा, वियतनाम में बाइडेन के खिताब के बाद जयराम रमेश का वजीर आज़म पर हमला। G20 सरबराह इजलास के मौके पर दिल्ली आने वाले अमरीकी सदर जो बाइडेन हिंदुस्तान के दौरे के बाद वियतनाम पहुंच गए और प्रेस से भी खिताब किया। बाइडेन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी से इंसानी हुकूक और आज़ाद सहाफ़त के बारे में बात की। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इस पर हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी पर तंज किया। अमरीकी सदर जो बाइडेन वियतनाम पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। वहां उन्होंने कहा, मैंने भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के साथ इंसानी हुकूक के एहतराम की अहमियत, एक मजबूत खुशहाल मुल्क की तामीर में सिविल सोसाइटी और आज़ाद सहाफ़त के अहम किरदार पर बात की। अब जयराम रमेश ने बाइडेन के इस बयान पर पीएम मोदी को निशाना बनाया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा, पीएम मोदी बाइडेन से कह रहे थे कि वो ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे
और नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि इसका कोई असर नहीं हुआ। जयराम रमेश ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन की टीम को G20 सरबराह इजलास से कबल मीडिया से बात करने और पीएम मोदी के साथ इनकी मुलाकात के बारे में जवाब देने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि यह हैरत की बात नहीं है क्योंकि पीएम मोदी के दौरे हुकूमत में जमहूरियत इसी तरह काम करती है। अवाम ने मोदी हुकूमत की विदाई का रास्ता बनाना शुरू कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई, बेरोजगारी और बदعنوانی के इशू पर मोदी हुकूमत पर शदीद हमला किया है। कांग्रेस सदर ने पीर के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी सच्चाई पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आवाम मोदी हुकूमत के ध्यान भटकाने वाले इशूज़ की जगह सच सुनना और देखना चाहती है। खड़गे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि अब G20 की मीटिंग ख़त्म हो गई, मोदी हुकूमत को घरेलू इशूज़ पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। अगस्त में एक आम खाने की थाली की कीमत 24% बढ़ गई है। मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 8% है। नौजवानों का मुस्तकबिल तारीख है। कांग्रेस सदर ने बदعنوانی को लेकर भी मोदी हुकूमत पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि मोदी हुकूमत की बदतर हुक्मरानी में बदعنوانی का सैलाब आ गया है। CAG ने कई रिपोर्ट में बीजेपी की कलाई खोली है। जम्मू कश्मीर में 13,000 करोड़ का जल जीवन घोटाला सामने आया, जिसमें एक दलित IAS अफसर को इसलिए जुल्म का शिकार बनाया गया क्योंकि उन्होंने बदعنوانی को जाहिर कर दिया। कांग्रेस सदर ने कहा कि इन सब के दरमियान मोदी जी सच्चाई पर पर्दा डालने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम मोदी हुकूमत के ध्यान भटकाने वाले इशूज़ की जगह सच सुनना और देखना चाहती है। उन्होंने मुतनब्बे करते हुए कहा कि ध्यान लगाकर सुन ले मोदी हुकूमत, 2024 में आपकी विदाई का रास्ता अवाम ने बनाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से बात करने ऋषि सुनक घुटनों पर बैठ गए। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ऋषि सुनक के दिल्ली में G20 कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर अपने बांग्लादेशी हममनसब शेख हसीना से बात करने के लिए अपने एक घुटने को टिका कर बैठे रहने की तस्वीर ने इंटरनेट पर बहुत से लोगों का दिल मोह लिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स साबिका ट्विटर पर एक सारिफ ने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बड़े आदमी को गुरूर नहीं होता। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक कुर्सी पर बैठे वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना से बात करने में आसानी के लिए फ़र्श पर बैठ गए। एक और यूज़र ने तस्वीर को शेयर करते हुए इसको फरहतंगेज़ और मुस्तहसिन करार दिया। क़ब्ल ऋषि सुनक ने दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर के अपनी अहलिया अक्षतामूर्ति के साथ दर्शन किए और पूजा की। ऋषि सुनक जो भारत के अपने पहले सरकारी दौरे पर हैं, कहा कि वो अपने भारतीय निस्बत और मुल्क से ताल्लुक़ पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते हैं। ऋषि सुनक खुद को एक फ़ख्रिया हिंदू करार देते हैं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।